Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine, and safe at home. Welcome to our online education. Myself, Sengundar Sulakshna, and I will be teaching you SPCC. So, students, today we are here to see Standard 11th SPCC, Chapter number 2, Company Secretary from Part 2. So today we are here to move on and start up a new chapter, Company Secretary. So today we are here to see the first part of the chapter in a very detailed manner. So before starting the today's portion, let us have a short summarization or a discussion about the introduction of the chapter, that what we are going to see in this chapter. So the chapter's name is Company Secretary. So you know that Company Secretary क्या कौन किस हिसाब से होता है और क्यों सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही डिटेल में देखा. So if you consider what is the portion of the company secretary को किस हिसाब से authorities होते, उसकी qualities क्या होती है, उसकी duties क्या होता है, उसका limitation क्या होता है और उसको किस तरीके का काम एक business firm यानी कंपनी के अंदर करना पड़ता है. होल डिटेल एक कंपनी सेक्रेटरी की पूरा डिटेल इस चैप्टर के अंदर से हमें मिलने वाला है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन इन अ वेरी वेल मैनर. सो नाउ लेट अस मूव ऑन with the line-to-line explanation of the chapter from the PDF in the further video. Students, let us move on with the today's portion in a very detailed manner. So today we are going to start up with the new chapter, chapter number 2, Company Secretary. So let us see what we are going to learn from this chapter. First of all, qualities and the qualification of a company secretary. Then, in what base is the appointment of the company secretary and what is its or is provision. After that we are going to see the functions and duties of a secretary. What are the functions and what are the duties of a secretary in an company, and the authority, limitation and liability of a company secretary, that we are going to see in a very detailed manner. Then we are going to see the termination of company secretary, why a company secretary can be terminated. That is we are going to see in this portion, and signification of a secretary, which means the importance of a secretary. As I said, the whole and soul chapter covers about the minor to detail of the portion of a company secretary in a very detailed manner, or we can say that brief manner. So without wasting the time, let us move on with the introduction in a very detailed manner. So I am going to read it out, listen it out carefully. Commerce has changed along with the change of social pattern. In the present time, it appears in the form of general company, a big company and multinational company. Nowadays, company secretary is essential as per the new Company Act. The company secretary is a special managerial officer in company structure. He has to manage company efficiently, effectively by observing Company Act. New Company Act 2013 has given special status of key managerial personnel to the secretary. In the company law, the following 5 persons have been included as key managerial person, KMP. Number 1, the managing director or chief executive officer or the manager. The company secretary, the chief financial officer, such other officer as may be prescribed. The whole-time director, such other officer as may be described. So it can be said that company secretary has been given second position in KMP according to the कंपनीज प्रोविजन. सो इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा कि कॉमर्स जितना चेंज हुआ है, कॉमर्स का जितना सोशल पैटर्न चेंज हुआ है, उतना प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं जनरल कंपनी का एक इम्पोर्टेंस देखा जाता है. एक बड़ा कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी माना जाता है, उसे भी आजकल एक कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ता है एज पर द न्यू
कंपनी एक्ट। आपको पता है न्यू कंपनी एक्ट 2030 में देखा गया। सो कंपनी सेक्रेटरी कहीं ना कहीं एक स्पेशल मैनेजरल ऑफिसर की तरह कंपनी स्ट्रक्चर में देखे जाते। ये एक ऐसे इंसान होते हैं जो कहीं ना कहीं एफिशिएंटली कंपनी की सारी ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैसे कंपनी एक्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं कंपनी चल रहा है कि नहीं, ये पोर्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते। नया कंपनी एक्ट ने बहुत ही स्पेशल स्टेटस की मैनेजरल पर्सन यानी जो मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड पर्सन है, वैसे 5 लोगों को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दिया है। कौन कौन है? तो फर्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर, ये तीनों लोगों को इसके अंदर आ सकते हैं। सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी में कंपनी सेक्रेटरी देखा जाता है। थर्ड प्रायोरिटी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी फाइनेंस रिलेटेड जो चीफ ऑफिसर है या उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या उसके मैनेजर देखे जाते होंगे। फिर होल टाइम डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर्स मोस्ट प्रोबेबली होल टाइम नहीं दे पाते, सो एक पर्टिकुलर होल टाइम डायरेक्टर को भी इंपॉर्टेंस देखा गया। फिर वैसे ही कुछ अदर ऑफिसर्स जो पहले से ही प्रिस्क्राइब किया गया उस नेचर में देखा जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को सेकेंड पोजीशन दिया गया है KMP के हिसाब से कंपनी प्रोविजन के अंदर, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंटली कंपनी सेक्रेटरी का काम देखा जाता है। सो इस तरीके से एज पर द इंट्रोडक्शन हमें पता चलता है कि एक बिजनेस फर्म के अंदर आज के न्यू एक्ट 2013 के हिसाब से कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा माना गया। नेक्स्ट इट इज क्वालिटीज एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। As the company secretary has been put as KMP, naturally his responsibility and fields of actions are exhaustive. To fulfill the responsibilities properly, he must have minimum qualification as per the Company Act and extra qualification to fulfill the job satisfactorily in the company. So as per Company Secretary Act, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि कंपनी सेक्रेटरी के एक्ट के हिसाब से कंपनी एक्ट जो न्यू 2013 में देखा गया उसमें कंपनी सेक्रेटरी को KMP यानी की मैनेजरल पर्सनल में इंक्लूड किया गया। तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है जो हायर अथॉरिटीज़ पे इंसान को इंक्लूड किया जाता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है और इवन उनका फील्ड ऑफ एक्शन, उन्हें जहाँ काम करना होता है वो बहुत एग्जॉस्टिव यानी इतना ज़्यादा काम होता है कि वो काम के मारे ही थक जाए, इतना एग्जॉस्टिव काम देखने को उनको मिलता होगा। इसीलिए नेसेसरी है कि उन्हें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली फुलफिल करना पड़ेगा। सो मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ उनको कहीं ना कहीं एज पर कंपनी एक्ट के हिसाब से मिनिमम उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए जिससे वो कंपनी का जो जॉब है वो अच्छी तरीके से सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट कर पाए। क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन नीचे डिटेल में दिया गया है, 2 जगह पे बाइफ्रिकेट करते हुए, एक में 12 पॉइंट है और एक में 10 पॉइंट्स देखा गया है। सो क्वालिटीज को फर्स्ट हम देखेंगे, गुड हेल्थ, होनेस्टी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, इंटेलिजेंट, डिसीजन पावर, analytical capacity, energy and enthusiasm, loyalty, confidence, tactfulness and smartness, फॉरसाइटनेस एंड लीडरशिप। तो क्वालिटी में कैसा होना चाहिए? उनका हेल्थ अच्छा हमेशा होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिमाग से इंटेलिजेंट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, उनके पास क्या सही क्या गलत है उसका डिसीजन उनको जल्दी मिलना चाहिए, एनालिटिकल कैपेसिटी होना चाहिए, ये करने से क्या होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, वैसे कहीं ना कहीं एनालिटिकल उनकी कैपेसिटी होना चाहिए, उनमें एनर्जी और एंथुसियाज्म हर चीज़ करने के लिए रेडीनेस होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए कि हम जहाँ काम कर रहे हैं उन पे ईमानदार होने के साथ साथ वफादार भी हो, वैसे एक लॉयल्टी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एज अ कंपनी सेक्रेटरी और हर एक चीज़ को करने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टेक्टफुलनेस एंड स्मार्टनेस, अगर कोई गलती भी हो जाती है तो उसे कैसे सही किया जा सकता है, वैसे टेक्टफुलनेस एंड स्मार्टनेस, स्मार्टली हर एक काम को करने का उनके पास उतना कैपेबिलिटीज होना चाहिए, फॉरसाइटनेस यानी फ्यूचर में क्या होगा किस तरीके से अभी से उसको डील करना पड़ेगा, वैसे एक फॉरसाइटनेस उनके अंदर होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। सो ये क्वालिटीज़ के साथ ही कोई भी इंसान कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। एफिशिएंटली की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी आप कहीं अपॉइंट तो हो जाओगे बट एफिशिएंटली उतना काम नहीं दे पाओगे। अगर आपको एफिशिएंटली कंपनी सेक्रेटरी बनना है, CS बनना है, तो उसके लिए ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं होना
चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। फर्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेकेंड नॉलेज ऑफ अकाउंट, knowledge of office administration, knowledge of meeting management, knowledge of various act, knowledge of economical and political affair, knowledge of current affair, excellence the command over English and knowledge of foreign language, knowledge of public relation, knowledge of computer and other electronic gadget। क्वालिफिकेशन उनका कैसा होना चाहिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए जो मिनिमम कंपनी एक्ट के हिसाब से देखा जाता है। उनको अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए ताकि अकाउंट में कभी भी उनको कुछ देखना हो, एज ए कंपनी सेक्रेटरी वो कभी भी कुछ भी रेफर कर सके। सेकेंड थर्ड जो है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनको नॉलेज होना चाहिए। मीटिंग को अरेंज करने का नॉलेज, उसका मैनेजमेंट करने का नॉलेज होना चाहिए। वेरियस एक्ट जो अलग अलग कंपनी रिलेटेड एक्ट है उसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या अभी चल रहा है करंट अफेयर्स उसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, करेंटली क्या चीज़ें चल रही है उसका भी उनको नॉलेज होना चाहिए। एक्सेलेंस कमांड होना चाहिए, इंग्लिश के ऊपर उनका एक अच्छा कमांड होना चाहिए और इवन उनको फॉरेन लैंग्वेजेस भी आना चाहिए। रदर देन दैट पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशंस के हिसाब से भी उनको नॉलेज होना चाहिए। रिलेशन मतलब हम उनके साथ क्या बात करें वैसा नहीं, पब्लिक रिलेशन एक अलग टॉपिक है, OCM और इकोनॉमिक्स में आपने डिटेल में उसको देखा होगा। सो पब्लिक रिलेशन के रिलेटेड भी उनको नॉलेज होना चाहिए। रदर देन दैट कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में भी उनको कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए। सो ये पोर्शन यहाँ खत्म होता है क्वालिफिकेशन का। सो इस तरीके से क्वालिटी और क्वालिफिकेशन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। बट अब हम हर एक क्वालिटीज जो हमने रीड की उसके ऊपर एक एक डीप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट अस मूव ऑन एंड सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। Qualities of a secretary. Number 1, good health. As per the company secretary is chief administrative head. He has to work hard at different level. He has to face irregularities. To fulfill his commitment, he has to work hard. For that, good health is essential. Then he will not get tired. If he is physically fit, naturally he will be fit mentally also. So good health होना चाहिए। एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको पता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह काम उनको करना पड़ता है। सो डिफरेंट लेवल पे उनको कहीं ना कहीं हार्डवर्क देना पड़ता है, इसीलिए उनको काफ़ी बार इरेगुलरिटीज यानी कि हमें टाइम टेबल होता है 3 बजे खाना खाया, 4 बजे खाया, सो गए इतने बजे इतना उठे, वो रेगुलरिटी कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी से मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए अपनी कमिटमेंट यानी अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं वर्क हार्ड करना पड़ता है। जितना उन्हें वर्क हार्ड करना पड़ता है उसके लिए उनके पास गुड हेल्थ होना चाहिए। अगर उनके पास गुड हेल्थ होगा तो वो जल्दी थकेंगे नहीं, वो टायर्ड नहीं होंगे। अगर वो टायर्ड नहीं होंगे तो इसका मतलब वो फिजिकली फिट है। तो अगर वो फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली भी ऑब्वियसली फिट होंगे। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी का हेल्थ कैसा होना चाहिए, तो बहुत ही गुड हेल्थ होना चाहिए। नेक्स्ट इट इज हॉनेस्टी। द सेक्रेटरी इज की मैनेजरियल पर्सनल, ही नोज ईच एंड एवरी मैटर्स ऑफ द कंपनी, सो इट बिकम्स हिज मोरल ड्यूटी टू बी हॉनेस्ट। हिज गुड कैरेक्टर्स एंड गुड habit will motivate other officer. He has to see interest of the company instead of his own. For that honesty is essential. कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, तो मैनेजरल पर्सन होता है, यानी जो मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ इंसान होता है। इसलिए उसे कंपनी का हर एक छोटी से लेके बड़ी बात तक बहुत अच्छे से पता होता है। इसीलिए उसकी मोरल ड्यूटी, ठीक है, एथिक्स के हिसाब से मोरल ड्यूटी होता है कि वो हॉनेस्ट बने, ईमानदार बने। सो उसका गुड कैरेक्टर और गुड हैबिट कहीं ना कहीं दूसरे जो ऑफिसर्स है जो उसके नीचे काम करते उनको मोटिवेट करेगा कि उनको भी उसी तरीके से ईमानदारी से सारा काम करना चाहिए। इवन उसका जो इंटरेस्ट है कंपनी के लिए, इंस्टेड ऑफ इज होन, उसका खुद का फायदा नहीं कंपनी का फायदा वो जितना देखेगा उतना होनेस्टी उसमें एसेंशियली होना चाहिए। मेरा क्या फायदा है, ये तो कंपनी का फायदा हो रहा है, इस तरीके से उसे होना नहीं है। चाहे सेल्फ ओरिएंटेड होने से अच्छा उसको कंपनी ओरिएंटेड होना चाहिए। इस तरीके की ईमानदारी कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी से उम्मीद किया जाता है। नेक्स्ट इट इज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। द कंपनी सेक्रेटरी हैज टू वर्क विथ मैनी पीपल लाइक शेयर होल्डर, debenture holder, board of director, government officer, employee, general public, etc. Moreover, he has to work with bank, government department and other specialized professional person. For that, his personality should be attractive and impressive to such people. So company secretary को कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ता है, जैसे कि शेयर होल्डर के साथ,
डिबेंचर होल्डर के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, एम्प्लॉय के साथ, जनरल पब्लिक के साथ, ये लोगों के साथ कहीं ना कहीं एज अ कंपनी सेक्रेटरी डील अप करना पड़ता है। इसीलिए उनको बैंक के साथ काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करना पड़ता है और इवन स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल पर्सन के साथ काम करना पड़ता है। इस रीज़न की वजह से उनका पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, तो अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होना चाहिए, ताकि कोई उनको देखते ही ये सोचे अगर ये बहुत व्यवस्थित इंसान, इनसे मुझे काम करना चाहिए, इनके साथ मेरे को बात करना चाहिए। इस तरीके का एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और इम्प्रेसिव, वो जब भी एक बात करे तो सामने वाला उसको एग्री करे, उस तरीके का एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी उसका होना चाहिए। इवन वो मेल हो के फीमेल हो, बट एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इट इज इंटेलिजेंस। द सेक्रेटरी हैज़ टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, बिजनेस अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी एक्ट, along with the policies matter. To carry out all this commitment, the secretary must be highly intelligent and sharp to tackle all this matter effectively and efficiently. कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यानी क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसके रिलेटेड सारा डिसीजन लेना पड़ता है। सो बिजनेस के जो अफेयर्स होते हैं यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कंपनी का होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि वो सारी पॉलिसी इनको मैटर करता है। सो सारी कमिटमेंट बिजनेस में क्या हो रहा है, किस तरीके से कहाँ करना है, क्या करना है, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो बता पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको इतना हाई इंटेलिजेंट होना पड़ता है कि वो शार्पली हर एक चीज़ को टैकल कर पाए, यानी हर एक चीज़ और हर एक जो मैटर उनके सामने, अगर कोई प्रॉब्लम ही आ जाता है पॉलिसी के रिलेटेड, अगर उनको इंटेलिजेंट होगी, उन्हें वो चीज़ पता होगा, तो उसके साथ वो टैकल कर पाएंगे और इस तरीके से वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। सो यहाँ तक का टॉपिक आज हम देखेंगे। I hope you all have understood this portion. So now let us have a short summarization of the topic that we have seen today. Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So as you all know, today we have seen the introduction of the chapter, qualities and the qualification of the company secretary. After that, we have seen in a very detailed manner the qualities of the company secretary, in which we have covered the 4 points in a very detailed manner. So let us have a short summarization of the topic that we have seen टुडे। सो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कंपनी जितना कॉमर्स आजकल अपडेट होता जा रहा है, उसके साथ साथ जनरल कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स और उसके अमेंडमेंट भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। जनरल कंपनी की अगर हम बात करते, वो नॉर्मल कंपनी हो कि मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसके अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी की इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि की मैनेजरियल पर्सन जो कि देखा जाता है हमारे इकोनॉमिकल पोर्शन में, यानी इकोनॉमिकल इन द सेंस जो हमारा कंपनी एक्ट है, नया कंपनी एक्ट 2015 देखा गया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि एज अ की मैनेजरल पर्सन आफ्टर नेक्स्ट टू चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सेकेंड ऑप्शन कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को दिया जा रहा है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस, कंपनी सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है ये पोर्शन में देखा जाता है। सो एज अ रिजल्ट नए कंपनी एक्ट के हिसाब से एज सेकेंड पोजीशन उनको दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं बिजनेस और कंपनी लाइन में कंपनी सेक्रेटरी का ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा उसकी क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन। एज आई सेड, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये भी बताया जा रहा है। एक कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं, उनके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज भी होना चाहिए। एज पर द कंपनी एक्ट उनके अंदर 12 क्वालिटीज होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। उसके बाद हमने डिटेल में देखा उनके अंदर क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, जो कि 12 क्वालिटीज एंड 10 क्वालिफिकेशन हमें गाइडअप कंपनी एक्ट के हिसाब से दिया गया है। अगर ये सारी चीज़ें उनमें हुई तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। सो क्वालिटीज में हमने देखा गुड हेल्थ होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए, रेदर देन दैट डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होना चाहिए,
नेक्स्ट उसके बाद कहीं ना कहीं फॉरसाइटनेस होना चाहिए। सो इस तरीके से हमने 10 टॉपिक्स को डिटेल में देखा, बट इसमें से आज हमने 4 टॉपिक्स ही कवर अप किया है। रेदर देन दैट फिर हमने देखा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो होना चाहिए, उसके साथ साथ अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर और अदर गैजेट्स के नॉलेज होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। इस तरीके से काफी एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे अलग नॉलेजेस होना चाहिए जिससे वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाए। अब उसके अंदर हमने क्वालिटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी में 4 टॉपिक्स को डिटेल में देखा, जो कि फर्स्ट है गुड हेल्थ। यू नो दैट व्हेन अ सेक्रेटरीज टॉपिक इज कमिंग द पर्सन इज नेक्स्ट टू द चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर। तो सीईओ के बाद डायरेक्टर सेकेंड पोजीशन कहीं ना कहीं जो है कंपनी सेक्रेटरी को दिया जाता है, यानी इनका वर्कलोड ऑब्वियसली ज्यादा होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो उनके काम को एफिशिएंटली करने के लिए और रेदर देन दैट इनकी काम में कोई रेगुलरिटी नहीं देखी जाती, यानी टाइमिंग की रेगुलरिटी नहीं देखी जाती, इसीलिए इररेगुलरिटी के साथ टैकल करके स्ट्रेस को हैंडल करके काम करने के लिए और अपना काम एफिशिएंटली फुलफिल करने के लिए उन्हें फिजिकली फिट होना पड़ता है। सो ऑब्वियसली वो फिजिकली फिट होंगे तो कहीं ना कहीं वो मेंटली भी फिट होंगे, तो इस तरीके से उनका हेल्थ गुड होना चाहिए ये माना जाता है। नेक्स्ट वो हॉनेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली केपीएम में जुड़े हुए हैं, यानी की मैनेजरल पर्सन में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो डायरेक्ट एक कांटेक्ट कंपनी के हर एक मैटर में होता है। सो कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सारी चीजें इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। सो कहीं ना कहीं इनको देख के लोगों को मोटिवेट होना चाहिए, उस तरीके का गुड इनका हॉनेस्ट लेवल होना चाहिए। सो इनके अंदर गुड क्वालिटीज और अच्छी चीजें होनी चाहिए जिसे देखकर उनके नीचे जो ऑफिसर्स काम करते उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलना चाहिए कि इनके तरह हमें काम करना चाहिए। सो कंपनी के सारे मैटर्स को पचा पाए, यानी अपने अंदर ही रख पाए और उसके रिलेटेड कंपनी ओरिएंटेड काम कर पाए, वैसे एक हॉनेस्ट इंसान की हमें जरूरत एज ए कंपनी सेक्रेटरी रहता है। थर्ड हमने देखा कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए। सो एज ए कंपनी सेक्रेटरी उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ डीलअप करना पड़ता है। डीलअप इन द सेंस कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ काम करना पड़ता है, बार बार उन लोगों को मीट करना पड़ता है और उनके साथ उन्हें बात करना पड़ता है। इसीलिए उन्हें इस हिसाब से होना चाहिए कि वो जहाँ पे भी जाए उनका एक प्रेजेंस और पर्सनालिटी गिरे, रेदर देन दैट वो इस हिसाब से अट्रैक्टिव हो कि उनका काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो कर पाए। फोर्थ हमने देखा इंटेलिजेंट। सो एज अ कंपनी सेक्रेटरी उन्हें इंटेलिजेंट होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें डिबेंचर, शेयर होल्डर्स, पब्लिक रिलेशन ऐसे बहुत सारे टॉपिक के साथ इंक्लूडेड होके काम करना पड़ता है। अगर उनको पॉलिसीज और सारी चीजें अच्छे से पता होगा, अगर उनके सामने कोई भी पोर्शन और प्रॉब्लम आए तो इजीली टैकल करने के लिए उन्हें इतना शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट होना नेसेसरी माना जाता है, इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट भी होना पड़ता है। सो यहाँ तक का टॉपिक आज हमने डिटेल में देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.